अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम से खुशामदीद कहती हूँ। अभी हम डिफेंस में हैं और मेरे साथ फातिमा मेरी बेटी की क्लास फेलो है, फ्रेंड है, रूममेट है और मेरी भी बहुत प्यारी बच्ची है। और एक अदद ये मेरी बेटी, हाय बोलो। हेलो। हाँ, और हम लोग अभी जा रहे हैं। मुझे PSO में इनवाइट किया गया है कि मैं वहाँ जाके कुछ अपने बारे में थोड़ा सा अपनी सक्सेस, अपने ड्रामास और इस पे मैं बात करूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह ताला। आज हम आपको पूरा इवेंट और ये सब दिखाते हैं। One eternity later. Access granted. हाँ तो कितनी? This is my friend Fatima. आलिया? हाँ, है ना? हाँ, तो सबसे टाइम चढ़वा। I know, but let the people come first. Okay. So we'll sit outside. अच्छा ठीक है। ओके। आउटसाइड। सेशन अटेंड करने आए हो ना, ड्रामा तो नहीं करने आए हो। बस वन राइटर है हमारे पास, अगर तुम्हें ड्रामे में तुम्हें एंट्री करनी है ये सही मॉडलिंग कर दो है। तेरी अजीब है। अच्छा। सबिन का मतलब ड्रामे 15 minutes later. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو اس سیشن کا۔ ہمارے درمیان آج ایک رائٹر موجود ہیں کہ جنہوں نے گاہے بگاہے ٹیلی ویژن اسکرینس کو بہت مشہور اور منفرد ڈرامے دیے، جس میں نورجہاں، قسمت، پیار کے صدقے اور چیر آپ کی تعلیم کی پہنچ میں میں دعوت دیتا ہوں محترمہ زنجبیل آصف صاحبہ۔ السلام جی، آپ سب لوگوں کے پیار کا، محبت کا، خلوص کا بہت بہت شکریہ۔ اور یقین کیجئے کہ جس محبت سے آپ نے مجھے بلایا ہے اور جس جگہ پہ میں اس وقت کھڑی بھی ہوں، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرنا بھی بہت سارے لوگوں کا خواب ہے کہ میں بولوں اور سامنے والے مجھے سنیں، میں جو بات کہوں وہ مانے۔ میرا بھی ایسا ہی خواب تھا۔ آپ سب بھی اپنی اپنی فیلڈز میں اس طرح کے خواب دیکھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ کسی دن میں بس میں ٹاپ پہ پہنچ جاؤں اور یہ ہو جاؤں۔ جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو میں نے اپنا 100% دیا اپنے کام کو، اور میری بھی خواہش تھی کہ کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے، میں آتے ہی مشہور ہو جاؤں، بس فوری طور پہ اور بہت شدید بڑی مشہور ہو جاؤں، اتنی
کہ اور یقین کیجیے کہ میری جو استاد محترم نور الہدا شاہ آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے ہی اس کو میرے اس ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ڈسکور کیا اور مجھے آگے ہیلپ کی، اور میں پھر آگے ایز اے ڈرامہ رائٹر میں نظر آئی آپ لوگوں کو. تو میں کامیاب تو ہونے لگی لیکن میں مشہور نہیں ہو رہی تھی. کامیابی سے مراد یہ ہے کہ میری ارننگس بہت اچھی ہو گئی. ابھی ہم رسک پہ بھی آئیں گے. بار بار میں سوچتی تھی اچھا ایسے ڈرامے ہٹ ہو جاتے تھے کہ جن کے پیچھے نور الہدا شاہ بھی نہیں ہوتی تھی، کہ مطلب اتنا بڑا نام جس نے مجھے بنایا، جو پائنیئر ہے ان کاموں کی. میں سوچتی رہتی تھی یہ آپا مجھے کہتی تھیں کہ تم اپنا بیسٹ دے رہی ہو، تمہارا کام بہت اچھا ہے، تمہاری ارننگس بہت اچھی ہو رہی ہیں، تم اتنا کیوں یہ ان چیزوں میں ہو رہی ہو، اور چھوڑ دو ان چیزوں کو، مت سوچو اس طرح سے. تمہیں تو کام بھی بے تحاشا مل رہا ہے، تمہارے ڈرامے ایکنالج ہو رہے ہیں، یہ تو ہے. لیکن وہ ورڈ آف ماؤتھ جس طرح سے ہوتا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملتی تھی. کہتی تو کچھ نہیں تھی لیکن مجھے ظاہر ہے کہ مجھے دکھ ہوتا تھا. اور ہمیں جو دکھ ہوتا ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بس اللہ میاں دیکھ رہا ہے، دیکھنا اس کی جو شامت آئے گی. بہت کچھ ایسے ہونے لگا میرے ساتھ کہ جو مجھے تکلیف پہنچائے وہ پراسپر ہوتا جائے. میں نے کہا یہ کیا کوئی کرائٹیریا ہے کیا کسی کی جو ہے وہ سکسیس کا یا اس کا. آپا مجھے کہتی تھی تم نا معاف کر دو، چھوڑ دو، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو. اور میں رات کو کہتی تھی معاف کر دیا، صبح میں واپس وہ آجوج ماجوج کے وہ کھدی ہوئی دیوار کی طرح میں وہیں پہنچی رہتی تھی کہ نہیں فلاں نے مجھے یہ کہا تو فلاں نے مجھے یہ کہا، تو وہ تو اچھا خاصا جا رہا ہے، میں ہی اسٹرگل کیے جا رہی ہوں، میں ہی پراسپر نہیں ہو رہی ہوں، میرے اپنے بڑے دکھ ہی نہیں ختم ہوتے تھے. آپا مجھے کہتی تھی کہ ہمیشہ جب بھی میں آپا کہوں تو آپا کا مطلب ہے نور الہدا شاہ میری استاد، کہ ہمیشہ جو ہے معافی جب ہم دیتے ہیں تو ہم خود کو آزاد کر رہے ہوتے ہیں. معافی سامنے والے کو ریلیکس کرنے کے لیے نہیں دی جاتی ہے، آپ خود اس آگ اس نفرت سے نکل جاتے ہیں. خیر ہوا یہ کہ میں ان کے کہنے پہ کہتی تو تھی کہ میں نے معاف کیا، لیکن واپس میں وہیں پہنچ جاتی تھی. ساتھ ساتھ میری یہ اسٹرگل بھی جاری تھی، ڈرامے بھی چل رہے تھے، کام مجھے مل رہا تھا، فائنینشلی میں ٹھیک ٹھاک اسٹرانگ ہو چکی. تو ایک انتہائی ہمبل گاؤں کی جاہل ان پڑھ بوڑھی خاتون نے میرے اندر کی نفرت کو جیسے پھونک مار کے مٹا دیا جاتا ہے نا، ایسے مٹا دیا. اس نے وہ بڑا مشہور تھا کہ وہ جو ہے اس کو ایون اس کے دوپٹے پہ بھی پیرن لگے ہوئے تھے. عام سی جو خاتون ہوتی ہے وہ ایسے مزاروں کی جو تھی ویسے ملنے آتی تھی. میری بہن کا جو ہے نا وہ گاؤں تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بیبی جب میں یہاں آ رہی ہوتی ہوں نا اور راستے میں یہ کانٹے دار جھاڑیاں دیکھتی ہوں. کانٹے دار جھاڑیوں کو سندھی میں دیویاں کہتے ہیں، جو یہ بڑے بڑے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس میں ہمارے کپڑے بھی پھٹتے ہیں ہماری کو. تو یہ جب میں دیکھتی ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے میں انہیں چوم لوں، آنکھوں پہ بٹھا دوں کہ میرے رب نے بنایا. یقین کیجیے وہ سادہ سی عورت مجھے اتنا بڑا گیان دے کے چلی گئی کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں سے بھی پیار کیا جائے. وہ تمام تلخ انسان جو آپ کی زندگیوں میں ہیں، جو ہماری زندگیوں میں ہیں، جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، جن میں ہم الجھ کے ہم تار و تار ہو گئے ہیں، ان کو کانٹے دار جھاڑیاں سمجھا گئے. اس دن میں نے سچے دل سے معاف کیا، اور جس لمحے میں نے میرے دل سے وہ
गुस्सा अंदर में, जैसे वो जो एक वो वाला गुस्सा, मैं उस फेज में थी उस ज़माने में जिसको हम कहते नहीं है वाई मी वाला फेज जो आजकल यूथ में बड़ा होता है, वो वाला फेज था मेरा। बोला ऐसा खाना खिला दो, ज़रा सा कुछ काट दो। उन्होंने मेरे दिल को आहिस्ता 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 यूं गूंद के मेरे अंदर से तमाम तलखियाँ, तमाम चीज़ें निकाल दी। और अब शोहरत का मैं जहाँ पे मेंटली, मैं जहाँ पे अपने दुनिया में जो हर इंसान की बनाई हुई दुनिया होती है, आप लोगों की भी होगी, मैं जहाँ खड़ी हूँ, मुझे अब किसी से कोई गिला नहीं। मुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार है, मुझे पौधों से प्यार है, मुझे जानवरों से प्यार है, मुझे लड़ने वालों से प्यार हो। उन साहब का नाम लेके कहा गया कि तुम, जब उसकी मौत वाक़ई हुई तो तुमने कहा कि अच्छा हुआ वो मर गया। तुम्हें किसने इजाज़त दी है? आप यकीन कीजिए, मैं जब उठी हूँ तो लज्जत आ रही है। और मुझे मतलब जो चीज़ों के बाद चीज़ें तर्जुमे हम कुरान की सुनते हैं, कहते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह आपको प्यार करता है। तो मुझे मतलब उसका अमली जो मफ़हूम है वो मुझे मिला। जैसे माँ है ना, बुरे से बुरे बच्चे को भी संभाल लेती है, इसका कोई नाम न ले, इसका जिक्र कैसे किया। मेरे परवरदिगार को अपना वो शराबी, वो बेकार इंसान जो हमारी नज़र में था, उसकी बुराई सुनना भी पसंद नहीं। वो गार्डनिंग करते करते पता चला कि इंसान का लाइफ साइकिल और प्लांट्स का लाइफ साइकिल सारा एक है, सब एक तरह से चलता है। प्लांट जब बीज देने पे आता है तो वो उसके बाद अगर आप उसका बीज को शुरू में नहीं काट दें और बीज पक जाए तो प्लांट खुद मर जाता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को जवान कर लेते हैं, उसके बाद हम मर जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सिर्फ उस गार्डनिंग से सीखी। तो ये 3 चीज़ें थी। अभी तो ज़िंदगी, अभी जितनी भी सांसें हैं, सीखेंगे, देखेंगे। मैं इस नतीजे पे पहुंची। मशहूर होना है, जिस इंसान से आप चाहते हैं कि मुझे तवज्जो मिले, प्यार मिले, आपको उससे पहले वेलकम करना होगा, आपको उसे उतनी मोहब्बत देनी होगी। रिस्क कमाना चाहते हैं, मेहनत कीजिए, 100% दीजिए और उसमें अल्लाह का अपना हिस्सा दे दीजिए, वो मस्ट है। और हर फील्ड में महारत के लिए आप राइटिंग से ले लीजिए, कुकिंग ले लीजिए, घर ले लीजिए, मर्दों की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अपने बिजनेस होते हैं, सब हर चीज़ में पैशन चाहिए होता है। हाफिज शाह है नहीं, पता नहीं कहीं चला गया है, वरना उसकी हर बात में PS होता है। तो खुले दिल के साथ कीजिए, मैं जवाब दूंगी। औरतों को अगर अपने दुख याद आ रहे हैं तो नूरजहां पे भी बात हो सकती है। कोई सास का दुख, कोई हम, क्वेश्चन आंसर कुछ पूछिए। बला पे भी पूछिए, बिल्कुल बला पे भी पूछिए। क्या आपको बहुत पसंद आया? बला मुझे बहुत पसंद आया। बला आपको बहुत पसंद आया? क्या चीज अच्छी लगी थी उसमें? बलाई का की बलाई पूछना चाहिए, आप देखें बुलाया राइटर को पसंद, इनको पूछना चाहिए। आप यहीं से देखना बस। अच्छा जी, उष्णा शाह की एक्टिंग अच्छी लगी। कैरेक्टर कैसा था उसका? वो कैरेक्टर डायलॉग वगैरह अच्छा, सब अच्छा लगा। वो तैमूर भी अच्छा था। तैमूर भी बिलाल अब्बास जी। अच्छा, प्यार के सदके किसी ने देखा ना? आपने देखा ना? बिल्कुल मेरी बिल्कुल यही पढ़ाई वाली हालत यही होती थी, जो वो पूरा बिल्कुल इवन जो वो सिक्के वाला वाकया था ना, वो भी वही था। हमारे स्कूल में, मेरा और शमाइल का स्कूल एक होता था। अब आपको याद, मालन होती थी हमारे स्कूल में, जहाँ से हम जाते थे।
वो चिप्स और ये कैंडी सारी वो हमेशा करती थी। मैं डम तो थी, सिक्के मिलते थे उस जमाने में, इतनी रश लगती थी उसके पास, अरे एक में बेतहाशा मोटी, जगह ही ना मिले। मैं जब भी मैं थोड़ा सा मैं वो सिक्का वो देके कुछ खरीदना चाहती थी, पीछे से धक्का आता था, पैसे गिर जाते थे। हर दफा का ये मेरे साथ होता था। एक दिन मेरे पैसे गिरे तो मैंने हाथ बढ़ा के वो अपनी टॉफी उठा ली, तो उसने वो बैठे बैठे उसने जो मुझे चांटा मारा, मेरे तो सर ही घूम गया। मैं रोती रही, मैंने कहा मेरे पैसे नहीं नहीं चलो जब तक बेल लग गई। तो वो भी वाकया जो है वो मेरा ही था, उसमें प्यार के सबके का। और मैथमेटिक्स आज भी मेरे लिए अजाब है, और मुझे आज तक पता नहीं चला कसम से कि इसकी ज़रूरत क्या है। कोई तो हमें समझाए कि ये हम क्यों इतना ये थीटा और ये और वो और स्क्वायर अलजेब्रा ये सब कहीं आते होंगे, ज़रूर काम आते होंगे, लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी में तो नहीं आया। हाँ जी, और सवाल बिस्मिल को लेके सवाल कीजिए ना, मैं तो पूरी तैयारी से आई हूँ। इतनी बुरी बात नहीं है टीजी के की हमदर्दी में कुछ कहते हैं ना, आप बोले। अच्छा मैंने देखा था आपसे, आपके ख्याल में उसका दूसरी शादी करना कैसा था? बहुत अच्छा मैंने सुना घरों में बड़ा झगड़ा हुआ था इस बात में कि अच्छा डिसीजन था उसका दूसरी शादी। सही बोले हैं, कोई भैया नहीं है भाभी, उनको पता भी नहीं चलेगा, कोई ना बताए। मैं भूल गई बुलाना उनको, मेरे हाँ बुला लेती हैं। मैंने सुना बड़ा वो बीवियाँ बेचारी कह रही थी इसका रूप तो मैंने अभी देखा, इतना बहस कर रहा है टीटी के फेवर में और ये किया वो किया। तो अच्छा आपके हिसाब से उसने बिल्कुल अच्छा किया दूसरी शादी कर ली, तो बेशक वो लड़की गोल्ड डिगर हो, कोई मसला नहीं है, कर लेनी चाहिए। वो तो बाद में पता चलता है, करके तो देखनी चाहिए ना, तो बस वो तो पहले कभी कोई पता नहीं है। हाँ पहली बार पता नहीं है, करके पता चलेगा। अच्छा हादसा आपका था, कोई हादसा भी हो सकता जी, है। हादसा भी मेरा था। ये उसी का लिंक है, हादसा है ये भी। अच्छा देखिए मैं ये मुझ पे बड़ी तनकीद भी हुई कि ये सारी औरतें जो हैं, औरतें राइटर्स जितनी भी हैं, ये सारी फेमिनिस्ट हैं और ये हैं वो हैं। दूसरी शादी पे तो मुझे भी एतराज़ नहीं था, लेकिन दूसरी शादी के बाद जो बिहेवियर है उस पर ज़रूर एतराज़ था, जो कि उसको अगर कोई मर्द मैनेज कर सकता है तो वो है। आपको पता है फर्स्ट डायनामिक अच्छा लगा था मुझे कि ऐसे होता कि बिकॉज स्पेशली जिनसे इंस्पायर्ड था उनको तो हम जानते थे, तो एक मेड सेंस, रिलेटेबल भी था। रिलेटेबल तो था, जितनी भी ख़वातीन हैं आपको लगता है रिलेटेबल था, ऐसा होता होगा घरों में? So, उस पर थोड़ी सी मैं आपसे 1-2 मिनट ले लूँगा। जी जी। जिंदगी में किस्सा ये होता है कि आप जब किसी की डांट खाते हैं या गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो 99 टाइम्स जो आपको तकलीफ देता है उसे इस बात का एहसास नहीं होता। आप 2 तरीके से अपने आप को प्रॉब्लम में लेकर आते हो, एक उस तकलीफ की वजह से और दूसरा उसकी कंटिन्यूटी की वजह से जो पूरी लाइफ आपको लेके चलती है। एक किसी हमारी टीचर ने मुझ पर शाउट किया था, आफ्टर 6 ईयर मैं बहुत दफ़ा जब भी वो बात याद आ जाती मैं परेशान होता था। आई बैठ और मैं जब उसे याद दिला रहा था कि आपने मेरे साथ क्या किया, शी कुडंट रिकॉल दैट। मुझे एहसास हुआ कि मैं 6 साल तक इस पर तड़पता रहा और उसने जो भी कुछ किया उसे उसका एहसास भी नहीं हुआ। आप 6 साल उसी क्लास में रहे? सर मैं समझाऊंगा फिर आपको क्लास में चलेगा। So coming back to that sort of thing होता है कि अपने मूड का रिमोट आप किसी और के हाथ में दे देते हैं इस तरीके से।
सेकंड बात है कि यदि कहीं पढ़ा कि आप अगर एनिमल से प्यार करते हैं तो आप इंसानों से प्यार कर सकते हैं, अगर आप एनिमल लवर नहीं है तो आप किसी भी इंसानों से प्यार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही है। थर्ड ये था कि जी पाकिस्तान कैसे बदले, खातून ने कहा जी दुनिया बचे गुर्बत, ये बहुत सवाल अभी रिसेंटली हुआ, उसने कहा जी अल्लाह मियाँ ने जो आपके ज़िम्मे काम दिया है और जो कुदरत ने आपको जो सलाहियत दी है सिर्फ आप उसी पे काम करें, जब उसी पे काम करेंगे तो चीज़ें आस्ता आस्ता खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएंगी। कमिंग टू दिस ड्रामा थिंग, मुझे लगता है कि मैं दूसरे मुल्कों में कहीं थोड़ा बहुत कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट इंडिया उनके ड्रामों में उनके फिल्मों में मैक्सिमम दिखाया जाता है कि लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हुई है। हमारे किसी भी ड्रामे में किसी भी एक्टर ने कभी भी सीट बेल्ट नहीं पहनी होती। ये जो छोटे छोटे मैसेजेस है, कचरा ना फेंकना, पानी का सड़क पे लेफ्ट राइट, हम इतना माइक्रो मैसेज भी अपने ड्रामों में नहीं दे पा रहे होते। ये किस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है? ये आपका बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट था। मैंने अभी ये सोचा भी था कि इस पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ, हम खुद क्या कर रहे हैं? हम एक तीली बचाने के लिए गैस को खुला छोड़ देते हैं, खत्म कर दिया हमने। हम खुद भी तो कुछ नहीं कर रहे। हम इस तरह लेके चलना है तो कहीं अच्छा नहीं होगा कि इस तरह की कोई स्टोरी है उसमें आपको कुछ जान डाला सकते। देखिए, अच्छा डायरेक्टर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कैमरा का सेंस भी हो। मैं तो अपनी सेल्फी नहीं अच्छी खींच सकती मैं क्या डायरेक्शन दे सकूँगी? हर इंसान की अपनी एक एक्सपर्टी होती है ना, तो हम उस एक्सपर्टी के साथ जुड़े रहें तो ही लगता है कि बहुत से लोगों ने काम भी, बहुत से लोगों ने चीज़ें की है, डायरेक्शन की तरफ आए। जी बहुत सारे। बहुत माजरत खा हूँ मैं, और ऐसा हम लोग किसी कॉलीग की बेटी की तकरीब में गए हुए थे तो इस वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैं आपकी तकरीर सुन नहीं पाया हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि बहुत उम्दा रही होगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने जिन ड्रामों का आपने तस्करा किया उनमें से कोई भी नहीं देखा। आप बेस्ट बताइएगा, मैं जाके देख लूँगा। लेकिन कुछ कमेंट्स जो मैंने अभी सुने इस डिस्कशन में, उस पर कुछ पे मेरा अपना एक ज़ाती नज़रिया जो मैं चाहता हूँ कि आपसे बात की है। आप कहती हैं कि एक ड्रामा नवीस वो दिखाता है जो आवाम देखना चाहते हैं। मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि माशरे की सोच को एक राह दिखाना एक ड्रामा नवीस की जिम्मेदारी है, और उसे वो दिखाना चाहिए कि जिसको दिखाने का हक़ बनता है, पहला। दो, ये कि मैं ये समझता हूँ कि आप कहती हैं कि आप एक अच्छी ऑब्ज़र्वर हैं और माशरे के उन पहलुओं पे ड्रामा नवीस का किरदार अदा करती हैं कि जो चाय पे हाफिज शाह मुझे कुछ कहना चाहते थे। नहीं, मुझे अभी कह रहे थे कि आप मेरा पूछ, आप आ गए ना, आप बहुत देर से आए। आप क्या कर रहे थे? अब ये हमारी जंजीबीर जो है वो पीएसओ के रिश्तेदार हैं क्योंकि कुछ लोगों की फूफी लगती है, कुछ लोगों की कजिन लगती है, तो हम सबकी रिश्तेदार हैं। इस पे दो सवाल और आ जाए आप मेरा नंबर ले लें। नहीं, मैं आपसे चाय पे बात कीजिए, जब मैं लिखने बैठती हूँ मुझे नहीं पता होता मैं क्या कौन से आप मैं जी मैम आपने चीज़ देखी, आपके जो ड्रामे लोगों ने देखी है, स्टोरी किसी ने देखी तो देखी, लड़के पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, बस क्या करें? अच्छा, हीरो पे करनी चाहिए ना। आपके दिल की आवाज़ कह रहे कि शाहरुख खान अभी तक कर रहा है साला। A few moments later. अगर सलमान तक अच्छा गड्डी थी apa yang sampai jawab atau di segmen pada skill lain mungkin. Thank you very much. Thank you. हर तरह
सर आ जाना, अभी आ जाओ, पहले आप भी आ जाइए ना बाय please। बाय। हाँ थैंक यू सो मच। लवली मीटिंग यू। ओके भैया लास्ट ऑनलाइन एक्चुअली आई डोंट नो थैंक यू सो मच। ओके ओके थैंक यू सो मच। Registered. मैडम यहाँ से आपकी एंट्री करवाइए। अच्छा यहाँ से। Access granted. आगे से वेट करना पड़ेगा। नहीं आगे। हेलो ओके खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। कहाँ गई?